پروگرام چائنا ٹوڈے میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ چودھری. دلچسپ معلومات پر مبنی یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے باہمی اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم چین اور پاکستان کی دوستی اور تعاون پر مبنی خبریں اور رپورٹس شامل کرتے ہیں. مختلف شعبوں میں چین کی بے مثال ترقی سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے. چین کے 133ویں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میلے میں جدید ترین ہائی ٹیک اشیاء کی نمائش کی جا رہی ہے. 5G، مصنوعی ذہانت جیسی ٹیکنالوجیز شائقین کی توجہ کا مرکز بنی ہیں. چین کے 133ویں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میلے میں صنعتی آٹومیشن، انٹیلیجنٹ مینوفیکچرنگ اور انٹیلیجنٹ مربوط گاڑیوں کا احاطہ کرنے والی جدید ترین ہائی ٹیک نمائشوں کو اجاگر کیا گیا ہے. 1957 میں شروع ہونے والا یہ میلہ، جسے کینٹن فیئر بھی کہا جاتا ہے، چین میں سب سے قدیم اور سب سے بڑا جامع بین الاقوامی تجارتی ایونٹ کہلاتا ہے. اسے چین کی غیر ملکی تجارت کے بیرومیٹر کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. رواں سال کینٹن میلہ جنوبی چین کے شہر گوانگجو میں 15 اپریل کو شروع ہوا اور 5 مئی تک 3 مرحلوں میں جاری رہے گا اور ہر مرحلہ 5 روز تک جاری رہے گا. انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجیز کی تیز رفتار ترقی اور عالمی مارکیٹ کے تقاضوں میں تبدیلیوں کے ساتھ رواں سال کے کینٹن میلے میں مقبول ترین نئی ہائی ٹیک مصنوعات کی موجودگی کلیدی عنصر ہے. میلے میں ایک خصوصی سیکشن کے طور پر 5G، مصنوعی ذہانت اور انٹرنیٹ آف تھنگز ٹیکنالوجیز سے آراستہ مصنوعات عالمی خریداروں کی توجہ حاصل کر رہی ہیں. چین کا مجموعی کمپیوٹنگ پاور سکیل دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے چانگ چانگ میں کمپیوٹنگ ہب لانچ کر دیا گیا ہے. چین میں ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کو فروغ دینے کی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے حال ہی میں صوبہ جیلین کے دارالحکومت چونگ چھون میں ایک کمپیوٹنگ ہب لانچ کیا گیا ہے. اس ہب کی کمپیوٹنگ پاور فی سیکنڈ 5 کوادریلین کیلکولیشن کر سکتی ہے اور اسے مختلف شعبوں میں استعمال کیا جائے گا. اس نئے قائم کردہ مرکز کی سپر کمپیوٹنگ پاور اگلے 120 گھنٹوں کے لیے 1.5 گھنٹے سے بھی کم وقت میں موسم کی پیشگوئی کی صلاحیت رکھتی ہے. انٹیلیجنٹ کمپیوٹنگ پر اطلاق کے بعد یہ فی سیکنڈ تقریباً 10 ملین تصاویر پر بھی عمل کر سکتا ہے، جو بیک وقت تقریباً 50,000 گاڑیوں کے لیے ریئل ٹائم روڈ کنڈیشن تجزیہ فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ مرکز جیلین اور مجموعی طور پر ملک کے شمال مشرقی خطے کی طب، زراعت، سیٹلائٹ، ریموٹ سینسنگ، مینوفیکچرنگ اور اسمارٹ شہروں کے شعبوں میں ترقی کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں کردار ادا کرے گا. چین کی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق ملک کا مجموعی کمپیوٹنگ پاور اسکیل اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. گزشتہ سال کے آخر تک ملک کی کمپیوٹنگ پاور کا مجموعی پیمانہ 180 ای فلوپس تک پہنچ چکا ہے، جو تقریباً 30% کی سالانہ شرح ترقی کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اور اسٹوریج کی صلاحیت کا مجموعی پیمانہ 1 ٹریلین گیگا بائٹ سے تجاوز کر گیا ہے. یانگجو کینڈ فوڈ برآمد کرنے والا چین کا اہم شہر ہے. رواں برس کے ابتدائی 2 ماہ میں چین نے 5 لاکھ ٹن سے زائد کینڈ فوڈ برآمد کیا. اس کا برآمد کا حجم 1.22 ارب امریکی ڈالر رہا. رواں برس کے ابتدائی 2 ماہ میں چین نے 5,23,300 ٹن کینڈ فوڈ برآمد کیا. چین کا کینڈ فوڈ برآمدات میں اس کا جو حجم ہے وہ 1.22 ارب امریکی ڈالر رہا. یانگجو کینڈ فوڈ برآمد کرنے والا چین کا اہم شہر ہے. عالمی مارکیٹ تک پہنچنے والی ابتدائی صنعتوں میں سے ایک چین کے کینڈ فوڈ سیکٹر نے پیداوار کے پیمانے، لاگت کے کنٹرول اور ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن میں اپنے فوائد کی بدولت بیرون ملک اپنی مقبولیت برقرار رکھی ہوئی ہے. چائنا کینڈ فوڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن کے مطابق 2022 میں چین کے کینڈ فوڈ آئٹمز کے برآمدی حجم اور قیمت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں بالترتیب 12 اور 22% کا اضافہ ہوا ہے. CCFIA کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں جنوری سے فروری کے دوران چین نے مجموعی طور پر 5,23,300 ٹن کی کینڈ فوڈ برآمدات کی اور برآمدی قیمت 1.22 بلین امریکی ڈالر رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں بالترتیب 10% اور 23% کا اضافہ ہے. یانگجو شہر کینڈ فوڈ برآمد کرنے کے لیے چین میں اہم پیداواری شہروں میں سے ایک ہے. شہر میں اس صنعت سے منسلک ہزاروں کاروباری ادارے ہیں، جن کی مجموعی پیداوار قومی برآمدات کے حجم کا تقریباً 15% ہے. یانگجو کسٹم حکام کے مطابق اس سال کی پہلی سہ ماہی میں یانگجو نے دنیا کے تقریباً 160 ممالک کو خاص طور پر گوشت، پھل اور مچھلی کی 3 اقسام میں 98,000 ٹن کینڈ فوڈ برآمد کیا.
چین کے جیچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر کے لانچنگ پیڈ کا 100واں مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ پیڈ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد 2003 میں پہلی مرتبہ اسے استعمال کیا گیا تھا۔ چین کے جیچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر کے لانچ پیڈ نے اپنا 100واں مشن مکمل کر لیا ہے۔ اس حوالے سے 16 اپریل کی صبح ایک نیا موسمیاتی سیٹلائٹ لانگ مارچ 4B راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا ہے۔ جیچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر چین کا پہلا لانچ پیڈ ہے جس میں مضبوط کنکریٹ کو مرکزی ڈھانچے کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ پیڈ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اسے 2003 میں پہلی مرتبہ استعمال میں لایا گیا تھا۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران اس پیڈ سے پہلے 50 لانچ مشنز مکمل کرنے میں 14 سال لگے، جبکہ دوسرے 50 مشنز صرف 6 سالوں میں لانچ کیے گئے ہیں، جس نے چین کے خلائی پروگرام کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ متعدد اقسام کے راکٹوں کے ہمراہ لانچ مشن سر انجام دینے کے لیے مرکز نے پیڈ کے لیے تیاری کے عمل کو مسلسل ہموار اور بہتر بنایا ہے اور سنگل لانچ مشن کی تیاری کی مدت کو 20 سال پہلے کے 30 دنوں کی نسبت کم کرتے ہوئے 14 دن کر دیا گیا ہے۔ اس دوران مسلسل سائنسی تحقیق اور جدت طرازی کو فروغ دیا گیا ہے۔ سائنسی تحقیق اور جدت طرازی میں 64 کامیابیاں اور 99 پیٹنٹس حاصل کیے گئے ہیں۔ 20 سال کی مسلسل کوششوں کی بدولت ٹیسٹنگ اور لانچنگ کے عمل میں تمام 100 مشنز کی کامیابی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ چین اب تک 20 موسمیاتی سیٹلائٹس کامیابی کے ساتھ لانچ کر چکا ہے۔ اس وقت بھی چین کے 8 سیٹلائٹس مختلف اپلیکیشنز کے ساتھ مدار میں موجود ہیں۔ یہ سیٹلائٹس چین سمیت دنیا کے 126 ممالک کو معلومات دیتے ہیں۔ چین کے محکمہ موسمیات کی انتظامیہ کے مطابق ملک نے سیٹلائٹ ایپلیکیشن سسٹم میں بڑی پیش رفت کی ہے اور اس وقت 8 سیٹلائٹ مختلف ایپلیکیشنز کے لیے مدار میں موجود ہیں۔ 1988 سے اب تک چین نے مجموعی طور پر فینگ یون سیریز کے 20 موسمیاتی سیٹلائٹس کامیابی کے ساتھ لانچ کیے ہیں، جس میں اس وقت مدار میں 8 سیٹلائٹ موجود ہیں جو نہ صرف چین کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں بلکہ دنیا بھر کے 126 ممالک اور خطوں کے لیے ڈیٹا مصنوعات اور خدمات بھی فراہم کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے 16 اپریل کو ایک نیا موسمیاتی سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کے لیے لانگ مارچ 4B راکٹ لانچ کیا گیا۔ یہ سیٹلائٹ موسم کی پیشگوئی، آفات کی روک تھام اور تخفیف، موسمیاتی تبدیلی کے رد عمل اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے خدمات فراہم کرے گا۔ چین کے پاس ترسیبی پیمائش کے لیے فعال سینسنگ صلاحیت بھی موجود ہے جو موسمیات کے لیے ایک بہت کارآمد اور اعلیٰ درستگی کی نگرانی کی صلاحیت ہے۔ حالیہ برسوں میں چین نے اپنے سیٹلائٹ نیٹ ورک کی ترقی میں مستقل پیش رفت کی ہے جو زیادہ صلاحیت کے ساتھ مزید علاقوں میں سیٹلائٹ مواصلاتی نیٹ ورک کے اطلاق کو تیز کرتا ہے۔ ووہان میں پہلی چائنا سافٹ ویئر انوویشن اینڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی، اگلی نسل کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن سیکیورٹی جیسے شعبوں میں 4 ارب یوان مالیت کے 23 سرمایہ کاری منصوبوں پر دستخط کیے گئے۔ سافٹ ویئر کی صنعت میں جدت طرازی کو فروغ دینے کے لیے ووہان میں پہلی چائنا سافٹ ویئر انوویشن اینڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں 4 ارب یوان مالیت کے 23 سرمایہ کاری منصوبوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ان معاہدوں میں سافٹ ویئر مصنوعات، اگلی نسل کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن سیکیورٹی جیسے شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ چینی ماہرین کا کہنا تھا کہ ہم ذہین انٹرنیٹ آف تھنگز کے میدان میں ایک آزاد اور قابل کنٹرول گھریلو آپریٹنگ سسٹم بنانا چاہتے ہیں جو واقعی گھریلو بنیادی آپریٹنگ سسٹم کی کمزوری کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے 3 گارجز ہائی ٹیک انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ نے بتایا کہ 100 ملین یوان کی سرمایہ کاری کے ساتھ 3 گارجز ڈیجیٹل انفراسٹرکچر آپریشن پروجیکٹ آبی تحفظ اور نقل و حمل کے محکموں کے ساتھ ساتھ چائنا 3 گارجز کارپوریشن کے اعداد و شمار اور ڈیجیٹلائزیشن کی صلاحیتوں کو مربوط کر کے یانگزی دریا بیسن کے علاقے کی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے مضبوط مدد فراہم کرے گا۔ اسی طرح 170 ملین یوان کی سرمایہ کاری سے انٹرنیٹ آف وہیکلز سیفٹی ٹیکنالوجی انوویشن سینٹر ووہان میں قائم کیا جائے گا تاکہ صوبے کے صنعتی فوائد، خاص طور پر علاقے میں 1400 سے زیادہ آٹو انڈسٹری سے متعلق کاروباری اداروں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے گھریلو آٹو موٹو سافٹ ویئر مصنوعات کی تحقیق اور ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ سال کے پہلے 2 ماہ میں چین کی آن لائن فروخت کا حجم 2 ٹریلین یوان سے بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ ٹیک اوے پلیٹ فارمز کی چین بھر میں سپر مارکیٹس کے ساتھ شراکت داری ہے جس کی بدولت کم ڈیلیوری فیس اور کم وقت میں اپنے آرڈر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
टेक अवे प्लेटफॉर्म्स ने पूरे चीन में वसी पैमाने पर कवरेज हासिल की है। ये न सिर्फ रिहायशियों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को ज्यादा आसान बना रहा है, बल्कि छोटे पैमाने पर सुपरमार्केट्स के कारोबार के फरोग में भी किरदार अदा कर रहा है। मशरिकी चीन के सूबे अनहुई के फोयांग शहर की लिंक्वान काउंटी में 38 साला लियोन होंग कई बरस से अपने खानदान के जेरे इंतजाम ग्रोसरी स्टोर में काम कर रही हैं। बड़े पैमाने पर वसी सहूलियात और कम कीमतों के साथ बड़ी सुपरमार्केट्स की बढ़ती हुई तादाद से छोटी दुकानों के लिए सूरत हाल मुश्किल हो गई है। ताहम बहुत सी सुपरमार्केट्स ने ऑनलाइन टेक अवे प्लेटफॉर्म्स के साथ शराकत कायम की है, जहां सारिफीन कम डिलीवरी फीस और कम वक्त में अपना ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। आजकल लियोन का ग्रोसरी स्टोर 3000 से ज्यादा इकसाम की मसनूआत से भरा हुआ है, जबकि फरोख्त का हजम कई गुना बढ़ गया है। लियोन का ग्रोसरी स्टोर सिर्फ एक नमूना है। हालिया बरसों के दौरान काउंटी की तवज्जो इंटरनेट की तरक्की पर मरकूज है और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और वायरलेस नेटवर्क्स की मुकम्मल कवरेज नए कारोबारी फॉर्मेट और मईशत की तरक्की को बहुत फरोग दे रही है। साल के पहले 2 माह में चीन की ऑनलाइन फरोख्त का हजम 2 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 298.69 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गया, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 6.2% से ज्यादा है। चीन का महकमा ज़राअत शहरियों को टेक्निकल रहनुमाई और सब्सिडी फ्राहम कर रहा है, जिसकी वजह से चीनी काश्तकार आलू, सोयाबीन, जवार, गंदम और इस तरह की 12 फसलें उगाकर खुशहाल हो रहा है। जुनूब मगरिबी और शिमाली चीन के शहर मौसम बहार में जारी बुआई को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। जुनूब मगरिबी चीन की चोंगचिंग काउंटी में मकामी महकमा ज़राअत अनाज की पैदावार बढ़ाने, जमीन के इस्तेमाल की कारकर्दगी को बढ़ाने और मकामी काश्तकारों की इजाफी आमदनी के हुसूल में तकनीकी रहनुमाई और सब्सिडी के साथ सोयाबीन को दीगर पौधों के साथ मिलाने के लिए कंपाउंड पौधे लगाने के मॉडल की हौसला अफजाई कर रहा है। तकरीबन 1000 हेक्टेयर जमीन पर ये कंपाउंड पौधे बैक वक्त सोयाबीन, जवार और मकई लगा सकते हैं। टोंगटोन जिले के एक मकामी किसान के मुताबिक सोयाबीन और जवार के इम्तिजाज के पौधे लगाने के मॉडल के जरिए जवार की पैदावार को बरकरार रखते हुए फी हेक्टेयर तकरीबन 1528 अमरीकी डॉलर मालियत के 1500 किलोग्राम से ज्यादा सोयाबीन जमा किए जा सकते हैं। शिमाल मगरिबी चीन की 4 सबसे बड़ी रेतीली जमीनों में से एक मॉस सैंड लैंड के अंदरूनी इलाकों में किसानों ने रेतीली मिट्टी में 2600 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में आलू की बुआई की है। वुशिन काउंटी और मकामी महकमे ज़राअत ने अब तक तकरीबन 800 हेक्टेयर खेत में रेतीली मिट्टी में आलू की बुआई की है। अंदरून मंगोलिया के महकमे ज़राअत के आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 77,500 हेक्टेयर से जायद खेतों पर मौसम बहार की काश्तकारी मुकम्मल की जा चुकी है, जिनमें से गंदम तकरीबन 69,133 हेक्टेयर, मकई तकरीबन 6,133 हेक्टेयर और आलू तकरीबन 2,267 हेक्टेयर पर मुहित है। मशरकी चीन के सूबा शाडोंग में 40वां वेफोंग बैनुल-अक़वामी पतंग फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में 60 ममालिक और खित्तों से 600 से ज़ायद पतंगबाज शरीक हैं। मशरिकी चीन के सूबा जोंगडोंग के दारुल हुकूमत में 40वां वीफांग बैनुल-अक़वामी पतंग फेस्टिवल 15 अप्रैल को शुरू हुआ, जिसमें 60 ममालिक और खित्तों से 600 से ज्यादा पतंग उड़ाने के शौकीन अफराद ने शिरकत की। इस साल वीफांग बिनहाई इंटरनेशनल ग्राउंड में एक बार फिर मुख्तलिफ अशकाल और साइजेस की पतंगें आसमान पर बुलंद होती नजर आईं। इस तकरीब के दौरान पतंगबाजी के मुकाबले और गैर मामूली सकाफती वर्से की नुमाइश समेत पतंग की थीम पर मबनी सरगर्मियों का एक सिलसिला मुनक्किद किया जाएगा। वीफांग पतंग साजी की अपनी तवील तारीख की वजह से मशहूर है। ये 1984 से वीफांग बैनुल-अक़वामी पतंग फेस्टिवल का घर रहा है। इस साल शुरू होने वाला ये इवेंट 21 मई तक जारी रहेगा। मशरकी चीन के सूबा शानडोंग का ताइवान शहर ट्यूलिप के रंगारंग फूलों से महक उठा है। शहरी 30,000 से जायद पेरूनी के फूल देखने के लिए उमड़ आए हैं। मशरिकी चीन के सूबा शानडोंग के तायान शहर के एक पार्क में ट्यूलिप के खूबसूरत फूल जमीन पर बिछे एक रंग बरंग कालीन का मंजर पेश कर रहे हैं और सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा ट्यूलिप नीले आसमान में सूरज की सुनहरी रोशनी में जब हल्की हवा में लहराते हैं तो इनसे महकती खुशबू माहौल को ताजा दम कर देती है। वस्ती चीन के शहर लुयोंग के शेनशू प्यूनी गार्डन में मुख्तलिफ कैटेगरीज और रंगों में प्यूनी के फूलों ने
ने भी भरपूर अंदाज में खिलना शुरू कर दिया है, जो अब सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। फूलों का ये बाग तकरीबन 40 हेक्टेयर पर मुहित है और चीन और बैरून मुल्क से यहाँ इन फूलों की 1000 से ज्यादा इकसाम हैं। इस बाग में 30,000 से ज्यादा प्यूनी के नायाब पौधों की खुसूसी नुमाइश भी की गई है, जो फूलों का शौक रखने वाले सयाहों के लिए एक यादगार तजुर्बा है। मुश्तरका जामे तरक्की के लिए ब्रिक्स और दीगर प्लेटफॉर्म से चीन और ब्राजील का ताउन मुसलसल बढ़ रहा है। दोनों मुल्क उभरती मंडियों के साथ जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे में तब्दीलियों के बावजूद चीन और ब्राजील के ताल्लुकात ने मुस्तहकम तरक्की को बरकरार रखा है और अमली ताउन में ठोस नताइज हासिल किए हैं। फरीकैन न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की मदद से यकजहती और ताउन के जरिए मुश्तरका तरक्की के ख्वाहां हैं और बड़े तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करते हैं। दोनों फरीक उभरती हुई मंडियों के साथ साथ एक दूसरे के जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB एक कसीरुल जहती तरक्याती बैंक है, जिसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका ने 2015 में कायम किया था। ये ब्रिक्स और दीगर उभरती हुई मईशतों और तरक्की पजीर ममालिक में बुनियादी ढांचे और पायदार तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल को मुतहर्रिक करता है। बैंक की सरमायाकारी के तरजीही शोबों में साफ तवानाई और तवानाई की कारकर्दगी, नक्ल व हमल का बुनियादी ढांचा, पानी और निकासी आब, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, समाजी बुनियादी ढांचा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। NDB ने बैनुल अक़वामी सतह पर दरपेश कुछ चैलेंजों, खास तौर पर आलमी मालियाती नज़्म व नस्क़ की बेचैनी और बदनज़मी का मुअस्सर जवाब दिया है। चीन ने कहा है कि अमरीकी रियासत मोंटाना की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का इक़दाम गैर कानूनी है। माहिरीन के मुताबिक टिकटॉक पर पाबंदी खुद अमरीका के आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। माशी और सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अमरीकी रियासत मोंटाना में मकबूल वीडियो ऐप टिकटॉक पर पाबंदी चीन के तैयार करदा सॉफ्टवेयर के खिलाफ सर्द जंग की तरह का इकदाम है। रियासत के कानून साजों ने SB 419 के नाम से एक बिल के तहत टिकटॉक को रोकने के लिए मोबाइल ऐप स्टोर्स को मोंटाना में सार्फिन को इसे डाउनलोड करने की सहूलत पर पाबंदी लगा दी है। इस बिल के हक में 54 और मुखालिफत में 43 वोट डाले गए। बीजिंग की मारूफ थिंक टैंक ताही इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो एना टैगन कहते हैं कि यह कहना मुतनाज़ नहीं होगा कि ये इकदाम सख्त ऑपरेटिंग माहौल की अक्कासी करता है, जिससे न सिर्फ टिकटॉक बल्कि किसी भी चीनी कंपनी के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कंपनीज अदालत जा सकती हैं, क्योंकि इस तरह की पाबंदी खुद मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जो तकरीर, मजहब, प्रेस, इज्तिमा और हुकूमती दरखास्त के हक समेत 5 आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। टिकटॉक ने एक बयान में कहा है कि कंपनी मोंटाना में अपने सारिफीन और तख्लीक़कारों के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी, जिनके जरिए माश और पहली तरमीम के हुकूक को हुकूमत की इस बदतरीन हद से तजावुज़ से खतरा लाहिक है। गवांगडोंग मुल्क का सबसे बड़ा इक्तिसादी सूबाई मरकज है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने 4 दिन तक इस सूबे का दौरा किया। वो मुख्तलिफ मकामात पर गए और सूबे की तरक्की के लिए हुकाम को जामे हिदायत जारी की। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में चीन के सदर शी जिनपिंग ने जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग का दौरा किया। अपने इस 4 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने तरक्की और खुद इन्हिसारी की अहमियत पर जोर दिया और मुतअद्दिद इलाकों में अहम मंसूबों का तयन किया। ग्वांगडोंग, जो मुल्क का सबसे बड़ा इक्तिसादी सूबाई मरकज है, हमेशा मुल्की इस्लाहात और खुलेपन के हवाले से इसका एक अहम किरदार रहा है। सदर शी जिनपिंग का ये दौरा इस जायजे के लिए था कि ग्वांगडोंग आला मयार की तरक्की में किस तरह कायदाना किरदार अदा कर सकता है और इसकी रुकावटें और कमजोरियां कैसे दूर की जा सकती हैं। उन्होंने सबसे पहले यांगजियांग का दौरा किया, जो अपनी समंदरी मसनूआत के लिए मुल्क भर में जाना जाता है। साल 2022 में इस शहर के सी फूड की कुल पैदावार 27.46 बिलियन युआन तक पहुंच गई, जो कि मुसलसल 20 सालों से ग्वांगडोंग में पहले नंबर पर है। यांगजियांग में शी जिनपिंग ने मैरी कल्चर बेस, मैंग्रोव जंगलात के इलाके, बंदरगाह और आबी वसाइल मुख्तस करने के मंसूबों का दौरा किया। उनका कहना था कि 1.4 अरब अफराद की आबादी वाले एक बड़े मुल्क के तौर पर चीन को अपने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इस मकसद को हासिल करने के लिए मुल्क को खुराक के हवाले से हमा जहद नुक्ताए नज़र अपनाना चाहिए और ज़मीन और समंदर दोनों पर मुश्तमिल खुराक की फराहमी का मुतनव्वे निज़ाम कायम करना चाहिए।
انہوں نے مزید کہا کہ چین کو ایک مضبوط سمندری پیداوار کا حامل ملک بنانے کی کوششوں کو تیز کرنا 20ویں CPC نیشنل کانگریس کا ایک اہم منصوبہ ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے دن شی جن پنگ نے ماؤ مینگ کا دورہ کیا، جو ایک ایسا شہر ہے جہاں غیر متوازن ترقی اعلیٰ معیار کی ترقی میں بڑی حد تک رکاوٹ بن رہی ہے۔ گزشتہ سال یہاں مقامی فیکس GDP اور دیگر اقتصادی اشاریے گوانگ ڈونگ کی اوسط سے بہت کم تھے۔ اس طرح کے عدم توازن کو دور کرنے کے لیے دیہی احیاء کی ضرورت ہے، خاص طور پر بیکیاؤ گاؤں کے لیے، جہاں لیچی کے مقامی باغات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں لیچی کی پیداوار کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ اس گاؤں میں اب تقریباً 450 ہیکٹر کے علاقے پر یہ پھل کاشت کیا جاتا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے لیچی کی اقسام اور مقامی شجرکاری کی ٹیکنیکس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے تکنیکی ماہرین کی حوصلہ افزائی کی اور اس بات پر زور دیا کہ وہ پھل کی تازگی کو برقرار رکھنے کے بہتر طریقے تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اس صنعت کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی احیاء کے حصول کے لیے مقامی مصنوعات کے تصور کو مکمل طور پر سمجھنا اور نافذ کرنا ہوگا، اور مقامی لیچی کی صنعت کی بہتری کے لیے شجرکاری اور مصنوعات کی پروسیسنگ پر مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنے دورے کے تیسرے دن صدر شی جن پنگ نے صوبائی دارالحکومت گوانگجو کا دورہ کیا۔ انہوں نے مینوفیکچرنگ انڈسٹری پر خصوصی توجہ مرکوز کی، جو طویل عرصے سے گوانگ ڈونگ کی معیشت میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران گوانگ ڈونگ ملک کی مینوفیکچرنگ صنعت کے لیے ایک مثال بن چکا ہے، جس میں نجی، فورن فنڈڈ اور سرکاری کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے GAC-A1 کا معائنہ کیا، جو کہ ملک کی معروف نیو انرجی آٹو انٹرپرائزز میں سے ایک ہے۔ اب یہ بیٹری، برقی موٹرز، برقی کنٹرول اور دیگر بنیادی ٹیکنالوجیز میں دنیا کی قیادت کر رہی ہے۔ انہوں نے GAC ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے مینیجنگ سٹاف، تکنیکی عملے، کاروباری افراد، ملازمین اور فورن فنڈڈ انٹرپرائزز کے نمائندوں سے ملاقات کی اور اس بات پر زور دیا کہ چین کی اصلاحات اور کھلے پن کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور وہ کبھی بھی اپنے دروازے بند نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین کو خود کفالت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے بنیادی ٹیکنالوجیز ملک کے اندر تیار ہونی چاہیے۔ ملک کو بین الاقوامی تعاون کا بھی خیر مقدم کرنا چاہیے اور جدید صنعتی نظام کی تعمیر میں مزید محنت اور لگن سے کام جاری رکھنا چاہیے۔ اپنے 4 روزہ دورے کے دوران صدر شی جن پنگ نے یانگ جیانگ، ماؤ مینگ اور گوانگجو کا دورہ کیا اور ایک بندرگاہ، نیچر ریزرو، ریزروائر اور دیگر مقامات کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گوانگ ڈونگ صوبے پر زور دیا کہ وہ چینی جدید کاری میں قائدانہ کردار ادا کرے، کیونکہ گوانگ ڈونگ کی ترقی صرف اس صوبے کی ترقی نہیں ہے بلکہ اس سے ملک کی ترقی بھی منسلک ہے۔ صدر شی جن پنگ کا یہ دورہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ چین اصلاحات، کھلے پن، خود انحصاری اور ترقی کے راستے پر گامزن ہے اور آنے والے وقت میں نت نئی ٹیکنالوجیز میں دنیا کی قیادت کرے گا۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں چین کے آرائشی پودوں، گملوں کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے۔ چین کے پودے خوبصورت اور موسم کی شدت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی سے متعلق دیکھیے یہ رپورٹ۔ نباتات سے متعلق ایک بین الاقوامی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں لگائے اور استعمال میں لائے جانے والے آرائشی پودوں میں سے نصف سے زائد کا تعلق چین سے ہے۔ پاکستان میں بھی حالیہ برسوں کے دوران ان پودوں کی مانگ میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کی وجہ ان پودوں کی خوبصورتی اور موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ مزاحم ہونے کی صلاحیت ہے۔ اسلام آباد کی ایک بڑی اور معروف نرسری کے مالک حسام علی کہتے ہیں کہ چین کی طرح پاکستان بھی مختلف آب و ہوا اور ماحول پر مشتمل خطوں پر مبنی ہے اور اسی بنا پر چین سے لائے گئے پودے یہاں کے ماحول سے جلدی ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے وہاں کی جو پودے ہیں ان کا رینج بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس سے زیادہ جو اچھی ویرائٹی ہم کو ملی ہے وہ چائنیز پلانٹس کی ہے۔ اس میں اگر ہم ریشو کا حساب کریں تو ایک بہت بڑی ریشو جو ہے نا وہ یا پرسنٹیج وہ ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں جی، اور اس کا بہت اچھے رزلٹ ملا ہے اور کسٹمرز کا فیڈ بیک جو ہے ابھی تک جو ہم کو مل رہا ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے، کسٹمرز بہت خوش ہیں۔ ان خوبصورت اور دلکش پودوں اور پھولوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جہاں سے یہ پودے لائے گئے وہاں صورتحال کیا ہوگی۔
चीन दुनिया में आराइशी पौधे बरामद करने वाले चंद बड़े मुल्कों में से एक है। आराइशी पौधों के साथ साथ चीन ने अपने यहाँ जंगलात के रकबे में काबिल जिक्र इजाफा करके माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए सब्जे की अहमियत का पैगाम भी दिया। हुसाम अली कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर होने वाले मुल्क पाकिस्तान को भी इस ज़िम्न में चीन की पैरवी करने की ज़रूरत है और इसके लिए अवाइल उम्री से शऊर उजागर करना पड़ेगा। ग्रीनरी के हवाले से वहाँ पे जो इनकलाबी वो की है, उन लोगों ने इक़दाम किए हैं, हम भी कर सकते हैं और हमको भी करना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है और अवेयरनेस जो है ना वो ग्रास रूट लेवल से शुरू होगा। ठीक है, हमको जाना चाहिए स्कूल्स में। ठीक है, बहुत यानी बच्चों के, छोटे बच्चों के जहनों में जो है ना ये बात हमने बिठानी होगी कि ग्रीनरी की क्या फ़वाइद हैं। ठीक है, और अगर ग्रीनरी ना हो तो उसके नुकसानात क्या हैं। चीनी आराइशी पौधों के साथ साथ चीनी दिलकश गमले भी पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो रहे हैं, जिसकी वजह इनकी गैर रिवायती बनावट और खूबसूरती है। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि ई कॉमर्स के साथ एक्सप्रेस डिलीवरी की सनत भी तरक्की कर रही है। चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस 7 बरस में दुनिया में नंबर 1 है। 2021 में चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस ने 1 खरब पैकेज पहुंचाए। बस एक टच और घर में बैठे बैठे कहीं बाहर निकले बगैर ही आपकी पसंदीदा मसनूआत आपके दरवाजे पर होंगी। ऐसी सहूलत की ख्वाहिश किसे नहीं होगी। आज चीन में एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए लाज़मी मुलज़ुम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में एक्सप्रेस डिलीवरी की इतनी कामयाब, तेज़ रफ्तार और जदीद सनत की तारीख सिर्फ 20 बरस पुरानी है। 1984 में चाइना पोस्ट ने डोमेस्टिक एक्सप्रेस मेल सर्विस का आगाज़ किया। यहाँ से चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री की तरक्की के सफ़र का आगाज़ हुआ। 1994 से 2002 तक मुतादिद निजी एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनीज मसलन SF एक्सप्रेस, ZTO एक्सप्रेस और युनटोंग एक्सप्रेस वगैरह इस मैदान में आए। हालिया बरसों में ई कॉमर्स की तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री भी तरक्की की सुनहरी दहाई में दाखिल हो गई है। 2014 में चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी की तादाद 10 बिलियन सालाना थी और इसी साल पहली बार चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस ने 14 बिलियन पैकेज के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। तब से अब तक चीन मसलसल 7 साल से दुनिया में पहले नंबर पर है। ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है और लोग एक्सप्रेस डिलीवरी की सहूलत से पूरी तरह फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ, 2021 में चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी 1 खरब पैकेज से तजावुज़ की गई है और हर पैकेज की महफूज तरसील के लिए कोई लाजमी है। जी हाँ, तो आज हम दोनों ने एक्सप्रेस कोरियर के काम का चैलेंज पूरा करना है। तो चले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। आज मैं एक कोरियर हूँ और आइए मेरे साथ ये देखते हैं कि ये तजुर्बा कैसा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जूसी और आज मैं सामान को अलहदा करने के निज़ाम का अमली तजुर्बा करूँगी। एलिवेटर्स वाले इलाके में तो ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर कोई रिहायशी इलाके में लिफ्ट न हो तो बहुत मुश्किल है। ये सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है।
यहाँ पार्सल्स का एक पहाड़ है, मैं ये सारा काम कैसे करूँगी? हर कोरियर को एक दिन में सैकड़ों पैकेजेस डिलीवर करने होते हैं और हल छांटने वाले को हर रोज बहुत बड़ी तादाद में पैसों को तरतीब देना होता है। 2021 में चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी की तादाद 1 खरब पैकेजेस थी। इतनी बड़ी तादाद में एक्सप्रेस ऑर्डर्स की दुरुस्त तरसीर टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती है। हालिया बरसों में मार्केट में मुकाबला बढ़ा है, इसलिए मुख्तलिफ कंपनीज ने तकनीकी जिद्दत में की जाने वाली सरमायाकारी में भी इजाफा किया है। 2020 में JTO एक्सप्रेस ने बुनियादी ढांचे, इंटेलिजेंट आलात और डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम में तकरीबन 10 बिलियन युआन की सरमायाकारी की। बेस्ट ग्रुप ने ऑटोमेशन आलात को अपग्रेड करने के लिए कुल 1.5 बिलियन युआन की सरमायाकारी की। युनडा ने 296 मिलियन युआन की सरमायाकारी की और अपने ही तैयार करदा 5G ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। आज टेक्नोलॉजी की तरक्की एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री से वाबस्ता हो गई है। जब लोग घर पे न हों या पैकेज को वसूल करने में किसी भी वजह से मुश्किल हो तो इन पैकेज को कैबिनेट में रखवाया जा सकता है और यहाँ पैकेज का घर कहा जाता है। चीन में मुतादिद मुकामात पर स्मार्ट एक्सप्रेस कैबिनेट्स मौजूद हैं। जितनी देर में इस कैबिनेट में ऑर्डर रखा जाता है, डिलीवरी कोड तैयार करके वसूल कुनिंदा को भेज दिया जाएगा। वसूल कुनिंदा इसी कोड के जरिए अपना पैसा उस बॉक्स में से लेता है। एक्सपर्ट अदायगी का वसूल लोगों को ज्यादा इल्तवा के बगैर अपना पैसा जल्द ही वसूल करने पर लाकिब करता है। अदाद शुमार के मुताबिक 2021 में स्मार्ट एक्सप्रेस कैबिनेट मार्केट का हुजूम 36.1 बिलियन युआन रहा, जिसमें साल बसाल 20.20% का इजाफा हुआ है और मार्केट का हुजूम मुसलसल बढ़ रहा है। एक्सप्रेस कैबिनेट के अलावा एक्सप्रेस सुपरमार्केटें भी हैं। लोग एक्सप्रेस पैसा उठाते वक्त मजीद चीजें भी खरीद सकते हैं, जो कि खरीदारी का एक और मुयसर और आसान तरीका है। हर छोटे पैकेज के पीछे साइंस और टेक्निक होती है, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक फिक्सेट और खुदकार छापने वाले AI निज़ाम और तेज रफ्तार इंटेलिजेंट वो सिक्योरिटी स्किन मशीन्स। इस एक्सप्रेस डिलीवरी सनत जो टेक्नोलॉजी की मदद से अब बहुत आसान बनाया गया है और ये सनत वो फिजिकल एक्सप्रेस डिलीवरी से हाई टेक एक्सप्रेस डिलीवरी तक बन चुकी है। आखिरकार आज का काम खत्म हो गया है। बहुत थकी हुई तो हूँ लेकिन मुतमईन हूँ। आज जिस कदर एक्सप्रेस पार्सल्स मैंने देखे हैं, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे थे और आज मैं इंतहाई मेहनत के साथ काम मुकम्मल किया है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको कैसा लगा? बहुत थकन है लेकिन आज बहुत दिलचस्प तजुर्बा भी है। आज मैं बहुत सारे सारिफिन से मिली और मुझे लगता है कि मैं सारिफिन और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक राबिता बन गई और मैं सोच रही हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी एक्सप्रेस सर्विस न हो तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। हाँ जी हाँ, ये हर पासों के पीछे मेहनती कोरिया के साथ वो जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और इंतहाई ज़हीन कंप्यूटर नेटवर्क शामिल हैं और ये चाइना है जहाँ हर काम आसानी के साथ मुमकिन है। जी बिल्कुल, और चाइनीज एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री को सम अप दें। 2020 के आखिर तक चीन में 224,000 एक्सप्रेस सर्विस आउटलेट्स थे, जिनमें से 71,000 देही इलाकों में वाक़ थे। मुल्क भर के टाउन और देहात में एक्सप्रेस डिलीवरी आउटलेट्स की कवरेज की शरह 98% पहुंच गई थी।
2020 में एक्सप्रेस बिजनेस रेवेन्यू की शरह नमू GDP की शरह नमू का 7.5 गुना थी। तेजी से बढ़ती हुई चीनी एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री एक के बाद एक करिश्मा दिखा रही है। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि शील्ड मशीन अंधेरे में नई दुनिया तलाश करने की बानी है। इस मशीन के सामने वाले सिरे पर लगा कटर हेड चट्टाने तक काट देता है। ज़ेरे ज़मीन तामीराती कामों के लिए ये मशीन बहुत कारआमद है। इंसान ने अपनी निगाह पुरहुजूम ज़मीन से हटाकर अपने कदमों तले मौजूद सख्त चट्टानों की जानिब की। यहाँ बहुत सी देव हैकल मशीन्स अंधेरे में एक नई दुनिया खोज रही हैं। आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे कदमों तले एक अजीबुल हय्यत शय हरकत में है? ये शील्ड मशीन है। इंसान की अपनी सलाहियतें महदूद हैं। वो औकात की तरह उड़ नहीं सकता, न ही ज़मीन के नीचे जिंदा रह सकता है। मगर इसका कमाल ये है कि ये औजार और आलात ईजाद कर सकता है। अगर हम कहते हैं कि खलाई जहाज़ की ईजाद इंसान के लामतनाही रोशनी को खोजने से हुई है, तो शील्ड मशीन अंधेरे में एक नई दुनिया तलाश करने की बानी है। ये मशीन लॉन्चिंग के बाद से ही बेहद ताकतवर है। इसके सामने सिरे पर बहुत बड़ा कटर हेड है जो रास्ते में आने वाली सख्त चट्टानों को पाश पाश कर देता है। इन्हें बजरी और रेत में बदलने के बाद कटर के मरकज से अंदरूनी पाइप में खींचा जाता है और तामीराती सुरंग को बाहर निकाला जाता है। मुसलसल आगे बढ़ने वाले कटर के पीछे खोखली सुरंग के किसी भी वक्त बैठ जाने का खतरा रहता है। ऐसे में इंसान का तखय्युल अपना किरदार अदा करता है। इंजीनियर ने इस 150 मीटर लंबी और 6000 टन की बड़ी मशीन में खोदने के साथ साथ तामीर करने का नया फंक्शन भी शामिल किया है। ये अपने पीछे मजबूत ज़ेरे ज़मीन रास्ता तामीर करती जाती है। शील्ड मशीन की मदद से वो काम जो पहले सैकड़ों लोग अंधेरे में करते थे, अब चंद लोगों और एक मशीन के साथ आसान हो गया है। ये इंसानी तारीख में पहली बार है कि इंसान ज़ेरे ज़मीन आसानी से आगे बढ़ सकता है। इस स्टील जायंट की तैयारी में जो पेचीदगी है वो हैरान कुन है। सौ मीटर से ज़ायद तवील ये मशीन हजारों फाल हिस्सों पर मुश्तमिल है। काबिल तजस्सुस बात यह है कि चीनी इंजीनियर्स ने ये ट्रांसफॉर्मर्स कैसे बनाए। ज़ेरे ज़मीन ये नाकाबिले तस्खीर स्टील बिग मैक मशीन कैसे बनाए। प्लेट बहुत ज़्यादा मोटी है। मैं एक बार में मुकम्मल तौर पर वेल्डिंग नहीं कर सकता। इसकी तह तक नहीं पहुंच सकता। वेल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होगी जो तबाहकुन हो सकती है। मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग टेक्नोलॉजी दरकार होती है। रिवायती वेल्डिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका वेल्डिंग आर्क शील्ड मशीन के 50 सेंटीमीटर मोटे
ताकतवर स्टील प्लेट के आर पार नहीं हो सकता है। चीन की शील्ड मशीन में एडवांस हाई एनर्जी डीप पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। हाई एनर्जी लेजर लाइट को वेल्डिंग के हिस्से पर मरकूज किया जाता है और 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बुलंद दर्जा हरारत पर वेल्डिंग पूल बनाया जाता है। यूं वेल्डिंग की गहराई को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से शील्ड मशीन के तमाम हिस्से मजबूती से एक दूसरे से जुड़कर एक स्टील जायंट बनाते हैं जो ज़ेरे जमीन आसानी से आगे बढ़ सकता है। अभी तक दुनिया में सबवेज का सबसे तवील माइलेज चीन का है। बड़े पैमाने पर बुनियादी तंसीबात की तामीर के बायस मकामी शील्ड मशीन्स की कीमत तेजी से कम हुई है। मगरिब हो या मशरिक, ज़ेरे ज़मीन अफसानवी दुनिया बेहद खौफनाक है। लेकिन आज हमें इल्म हुआ कि अंधेरा सिर्फ खौफी की अलामत नहीं, ये नई उम्मीद भी हो सकता है। यही शानदार चीन है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।